سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ادھر محمد بن قاسم برہمن آباد سے اروڑ کی طرف کوچ کی تیاریاں کر رہا تھا، ادھر اروڑ میں اس کے مقابلے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اروڑ میں عجیب چیز یہ تھی کہ وہاں کی فوج اور وہاں کے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ راجہ طاہر زندہ ہے۔ راجہ طاہر کا بیٹا گوپی یہ الفاظ سننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ راجہ طاہر مارا جا چکا ہے۔ مندروں میں پوجا پاٹ کے دوران راجہ طاہر کا نام یوں لیا جاتا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ راوڑ کے میدان جنگ میں سے راجہ طاہر کے بہت تھوڑے فوجی زندہ نکل سکے تھے، اور جو زندہ نکل گئے تھے انہوں نے راجہ طاہر کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ رانی لاڈی نے برہمن آباد کی فوج سے کہا تھا کہ راجہ طاہر کا سر کاٹ دیا گیا ہے اور اس کا انتقام لینا ہے، لیکن اروڑ کو اس نے یہ اطلاع بھیجی تھی کہ راجہ طاہر زندہ ہے۔ اروڑ میں یہ مشہور کیا گیا تھا کہ راجہ طاہر ہندوستان کے راجوں مہاراجوں سے فوج لانے کے لیے چلا گیا ہے۔ مورخوں کی تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ نہیں تھا۔ شاہی خاندان کے افراد بھی مانتے تھے کہ راجہ طاہر زندہ ہے اور وہ بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہے۔ اروڑ والوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رانی لاڈی محمد بن قاسم کی قیدی بن چکی ہے اور مائی رانی نے خودکشی کر لی ہے۔ محمد بن قاسم 3 محرم 94 ہجری 712 عیسوی بروز جمعرات برہمن آباد سے کوچ کر گیا۔ راستے میں ایک جھیل آئی جس کا نام ڈہڈا تھا۔ اس کے ارد گرد بڑا سرسبز علاقہ تھا جو دندا کر باغ کہلاتا تھا۔ محمد بن قاسم کو یہ علاقہ اتنا اچھا لگا کہ اس نے یہیں پڑاؤ کر لیا اور ارد گرد کی بستیوں میں اپنے آدمی اس حکم کے ساتھ بھیج دیے کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں اور سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ راجہ طاہر مارا جا چکا ہے اور اب سندھ کے حکمران مسلمان ہیں۔ اس علاقے میں بدھ مت کے لوگ اکثریت میں تھے جن میں زیادہ تر تجارت پیشہ تھے۔ انہیں جب اطلاع ملی تو ان کے سردار فوراً محمد بن قاسم کے پاس آ گئے اور نہ صرف یہ کہ اطاعت قبول کی بلکہ اپنی وفاداری کا پورا یقین دلایا۔ ان میں 2 سردار زیادہ معزز اور اثر و رسوخ والے تھے، ایک کا نام بواد اور دوسرے کا بدیہی دول تھا۔ ان دونوں کو محمد بن قاسم نے انتظامی امور اور محصولات کی فراہمی کے لیے سرکاری طور پر عمال مقرر کر دیا۔ تمہارے ساتھ اور ارد گرد جاٹ قوم آباد ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تمہارے ساتھ ان لوگوں کا کیا سلوک ہے؟ یہ قوم قابل اعتماد نہیں۔ ایک سردار نے جواب دیا، ہم نے ان کے وظیفے مقرر کر رکھے ہیں اور انہیں ہم بلا قیمت اناج وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں جس سے یہ لوگ ہمیں پریشان نہیں کرتے۔ اگر ان لوگوں کو انسانیت کا درجہ دیا جائے تو یہ سدھر سکتے ہیں۔ ہم امن پسند قوم ہیں۔ دوسرے بدھ سردار نے کہا، ہمارے پاس پیار اور محبت کی جو دولت ہے یہ ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ ہم نے جاٹوں پر یہ حربہ بھی استعمال کیا ہے، یہ لوگ ہماری محبت کو قبول کرتے ہیں۔ تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ جاٹوں کے سردار اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے انہیں اسی وقت بلا لیا۔ دونوں سردار جب آئے تو وہ کسی پہلو سردار نہیں لگتے تھے۔ وہ سر اور پاؤں سے ننگے تھے اور انہوں نے کندھوں سے ٹہنوں تک کمبل سے اپنے جسم ڈانپے ہوئے تھے۔ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ محمد بن قاسم نے ان سے پوچھا۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، لیکن ہماری اطاعت ابھی عارضی ہوگی، ہمارے اور قبیلے بھی ہیں، ان کے سرداروں کے ساتھ بات کر کے ہم آپ کو اپنا آخری فیصلہ دیں گے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا سلوک اور برتاؤ کیا ہوگا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم نے ہماری اطاعت قبول کی ہے یا نہیں، اگر تم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو تمہارے لیے بہت ہی بھیانک سزا موجود ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ جو شہر اور جو علاقہ فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتے اور انہیں پورے حقوق اور ان کے جان و مال کا تحفظ دیتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جو پہلے راجہ نے رکھا تھا تو ہم پھر اپنے راستے پر چل پڑیں گے۔ کیا تم اس فوج کا مقابلہ کر سکو گے جس نے اتنے زیادہ قلعے سر کر لیے ہیں اور راجہ طاہر جیسے بہادر جنگجو کو مار ڈالا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اے عرب کے سالار،
जाटों के एक सरदार ने कहा, हम तुम्हारे आमने सामने आकर नहीं लड़ेंगे, हमारी लड़ाई कुछ और तरह की होती है। हमारी ज़रबें आप पर पड़ती रहेंगी, लेकिन हम आपको नजर नहीं आएंगे। हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, हमारी दोस्ती कबूल कर लें। मोहम्मद बिन कासम ने इनकी दोस्ती कबूल कर ली, लेकिन इन दो सरदारों के लिबास और हुलिये और बात करने के अंदाज को देखा तो उसे शक हुआ कि ये लोग ज्यादा अरसे तक दोस्त और वफादार नहीं रहेंगे। उसने उनकी वफादारी को कबूल तो कर लिया, लेकिन अपने मशीरों से मशवरा करके हिजाज बिन यूसुफ को हाथ लिखा, जिसमें उसने जाट कौम की हसलतों की तफसील लिखी और उससे पूछा कि इस कौम के साथ रवैया क्या होना चाहिए। वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। एक खतरा तो ये भी था कि ये जाट राजा दाहिर के बेटों के साथ मिलकर उसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। यूं भी हो सकता था कि राजा दाहिर के बेटे जाटों को ईरानियों की तरह बाइज्जत हैसियत और ज्यादा मराद देकर अपने साथ मिला लें। ये खतरा तो था ही कि जाट एक जंगजू कौम थी। मोहम्मद बिन कासम ने यह हाथ तेज रफ्तार कासद को देकर उसी वक्त रवाना कर दिया। चंद दिनों में हिजाज बिन यूसुफ का जवाब आ गया। उसने लिखा था, अजीज फरजान, तुम पर अल्लाह की सलामती हो। तुमने जाट कौम के मुतल्लिक मुझसे पूछा है। मेरा ये हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है कि जो कौम तुम्हारे खिलाफ लड़ती है या जिस कौम से भी तुम्हें खतरा है और वो मुसलसल नाफरमानी करती आ रही है, तो उसके तमाम चीदा अफराद और सालारों को कत्ल कर दिया जाए। जाट कौम को तुम कोई कमजोर कौम न समझना। तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि इस कौम के आदमी खालिद बिन वलीद के मुकाबले में आ चुके हैं और बहुत दुलेरी से लड़े थे। इनके कुछ हसाइल तुमने लिखे हैं और कुछ मुझे मालूम थे। ये जाट अगर तुम्हारे खिलाफ मैदान जंग में नहीं आएंगे तो भी तुम्हारे लिए खतरनाक होंगे। अमनो अमान नहीं रहने देंगे, काफिलों को लूटेंगे कि यही इनका पेशा है जो नस्लों से चला आ रहा है। इन पर बहुत ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। ये तुम्हें मालूम करना होगा कि इनमें जंगजू कौन हैं जो सरकश और बागी भी हैं। इन सब को कत्ल कर दो या उनके बेटों और बेटियों को यरगुमाल के तौर पर अपने पास रख लो और उन्हें अपने इन आदमियों और औरतों की तहवील में रखो जो इन बच्चों के हकूक और इज्जत नफ्स का खास ख्याल रखें। फिर ये देखो कि इस कौम में जो फरमा बरदार और अमनो अमान में रहने वाले हैं और इनमें जो ताजुर, कारीगर और काश्तकार हैं और जो पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन पर मामूली सा जजिया आयद कर दो और जो कोई खुद ही इस्लाम कबूल कर ले उससे जजिये की बजाय सिर्फ उशर लो। इनमें से उन लोगों को जो जुर्मो सरकशी के आदी हैं इस्लामी असूलों से भी रोशनास कराते रहो। तुम वहाँ हो और तुम करीब से देख रहे हो। हालात के मुताबिक अपने फैसले खुद कर सकते हो, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। मोहम्मद बिन कासम ने इस मुकाम पर जाटों पर ऐसी सख्ती न की क्योंकि असल सरकश और जराइम पेशा जाटों का इलाका आगे आ रहा था। कुछ दिनों बाद मोहम्मद बिन कासम ने यहाँ से भी कूच किया और समा कौम के इलाके में जा पड़ाव किया। ये वो इलाका था जहाँ सिर्फ जाट कौम रहती थी और जो सहज सजाओं के बावजूद काबू में नहीं आती थी। मोहम्मद बिन कासम का हैमा गाड़ा जा रहा था कि दूर से बहुत से ढोल बजने की आवाज आने लगी। ढोलों के साथ गोलों का शोर भी था। ढोलों और इंसानों का ये शोरोगोगा आगे ही आगे बढ़ता आया। मोहम्मद बिन कासम ने कहा कि मालूम किया जाए कि ये कौन लोग हैं और ढोल बजाते चले आ रहे हैं। ये जाट हैं सलारे आला। वजीर सियाकर ने कहा, ये इनका रवाज है कि किसी का इस्तकबाल करने निकलते हैं तो ढोल बजाते और नाचते हुए इसका इस्तकबाल करते हैं। मालूम होता है कि ये आपके इस्तकबाल को आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये इतने अहमक नहीं होंगे कि हम पर हमला करने आए होंगे। मोहम्मद बिन कासम ने कहा और घोड़े पर सवार होकर उस तरफ घोड़ा दौड़ा दिया जिस तरफ से जाट आ रहे थे। मोहम्मद बिन कासम का मुहाफिज दस्ता उसके पीछे गया। जाट नंगे सर और नंगे पांव नाचते चले आ रहे थे। वो अपना कोई गीत भी गाते आ रहे थे। मोहम्मद बिन कासम ने इस बेपनाह हजूम के सामने जा घोड़ा रोका और घोड़े से कूद कर उतरा। जाटों का शोर और ज्यादा बुलंद हो गया और वो पहले से ज्यादा जोशो खरोश से ढोल पीटने लगे। फिर उनके 3-4 आदमी जो सरदार मालूम होते थे आगे आए और उन्होंने मोहम्मद बिन कासम के साथ मुसाफा किया। मोहम्मद बिन कासम के साथ तर्जुमान भी था। उसकी मार्फत जाटों के सरदारों के साथ बातें हुई। उन्होंने अपने एक सरदार को आगे कर दिया कि वो उनकी नुमाइंदगी करे। हम आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं, जाटों के सरदार ने कहा। मालूम नहीं आप हमारे इस्तकबाल को कबूल करेंगे या नहीं। अगर तुम लोग इस रास्ते से हट आओ जिस पर तुम चले जा रहे हो तो मैं तुम्हारा सिर्फ इस्तकबाल ही कबूल नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें अपना दोस्त बना के रखूंगा। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, अगर वही तौर तरीके रखोगे तो तुम्हें इससे ज्यादा सजाएं मिलेंगी जो यहाँ के राजों से मिलती रही हैं। क्या तुम अपने किसी ऐसे सरदार को मेरे पास भेजोगे जिसके साथ मैं हर किस्म की बात कर सकूं? हाँ, जाटों के इस सरदार ने कहा।
हम उसे भेजेंगे। ये लोग नाच कूद और गाना बजा कर चले गए। मोहम्मद बिन कासम ने उनके आगे तशक्कुर और इत्मीनान का इजहार किया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा जाट जिसका नाम बहूरिया था मोहम्मद बिन कासम के पास आया। उसके साथ 3-4 आदमी थे। मोहम्मद बिन कासम ने उसे इज्जत और एहतराम से अपने हेमे में बिठाया। शुबान सख्फी और 2 और सलार मोहम्मद बिन कासम के साथ मौजूद थे। ए बुजुर्ग सरदार, मोहम्मद बिन कासम ने तर्जुमान की मार्फत उससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ क्यों आए हो? ए अरबी फौज के हाकम, बूढ़े बहूरिया ने जवाब दिया, मेरे कबीले ने जिस तरह तुम्हारा इस्तकबाल किया है, इससे तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। ये हमारा रवाज है कि जिसे हम दिल से चाहते हैं उसका इस्तकबाल इसी तरह किया करते हैं जिस तरह तुम्हारा किया है। तुम हमारे इलाके में आए हो और हम खुश हुए हैं। ये इलाका तुम्हारा नहीं है मेरे बुजुर्ग, मोहम्मद बिन कासम ने कहा। ये इलाका उस वक्त तुम्हारा होगा जब मुझ पर यह साबित करोगे कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हें इस इलाके का सरदार बना दूं। तुम तो जंगजू थे, फिर तुम डाकू और राहजान क्यों बन गए? इसलिए कि राजा चच ने हमें इंसान समझना छोड़ दिया था, बूढ़े बहूरिया ने कहा। जब इन पर ईरान वालों ने हमला किया तो हमें लड़ाया गया। अगर हम लोग जाने ना लड़ाते तो ईरानी पूरे का पूरा सिंध ले लेते। चच और इसके बेटे दाहिर का नामो निशान ना होता। ये हम जाट ही थे जिन्होंने ईरानियों को मकरान से आगे ना आने दिया, लेकिन हमें मदद न मिली और लड़ने वाले जाट ईरानियों के कैदी हो गए। ईरानियों ने उन्हें मवेशियों की तरह रखा और जब तुम जैसे मुसलमानों ने ईरानियों की कमर तोड़ डाली और इनकी अतात का सूरज गरूब होने लगा तो उन्होंने जाटों को सिपाही बनाकर इज्जत दी और मुसलमानों के खिलाफ अरब में लड़ाया। फिर वो मुसलमानों के कैदी हुए। इधर हम जो उनकी औलाद थे इस वजह से सजा भुगतने लगे कि हमारे बाप और हमारे भाई मैदान जंग में कैद हो गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग काफिलों को लूटने लगे। बूढ़े बहूरिया का अंदाज ऐसा पुरअसर था कि मोहम्मद बिन कासम इन हमाक से उसकी बातें सुन रहा था। तुम नहीं जानते ऐ सलार, बहूरिया ने कहा, हमारे साथ जो सलूक होता है वो तुम नहीं जानते। एक मोटी चादर या कंबल के सिवा हम जिस्म पर कोई और कपड़ा नहीं डाल सकते। हम पाँव में जूते नहीं पहन सकते, सर पर पगड़ी नहीं लपेट सकते। हम शाहसवारों की औलाद हैं, लेकिन हमें घोड़े की सवारी की इजाजत नहीं। अगर हम में से कोई सरदार हाकम की मंजूरी से घोड़े पर बैठे तो वो घोड़े पर ज़ेन नहीं डाल सकता। हमारे कई खानदानों के बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें जिंदा जला दिए गए हैं। हमने राजा के खिलाफ ये जंग शुरू कर रखी है कि जहां हमारा हाथ पड़ जाता है वहां हम लूट मार करते हैं। क्या तुम भी हमारे साथ यही सलूक करोगे? इस सवाल का जवाब तुम खुद दे सकते हो, मोहम्मद बिन कासम ने कहा। अगर तुम अपने आप को इसी सलूक के काबिल समझोगे तो मेरी तरफ से तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बुरा सलूक होगा। मुझे अरब से हुक्म आया है कि जो सरकशी, बगावत और बदअमनी फैलाते हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए और जो पुरअमन तरीके से जिंदगी बसर करने वाले हैं उन्हें पूरी इज्जत दी जाए और उनसे इतना ही जजिया लिया जाए जो वो आसानी से अदा कर सकें। फिर मुझे ये हुक्म मिला है कि तुम में से जो कोई अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर ले उससे जजिया भी ना लिया जाए, उसकी बजाय मामूली सा उशर लिया जाए। और ये मेरे मजहब का हुक्म है कि तमाम इंसान मसावी हैं, मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं। अगर फर्क है तो सिर्फ फराइज का है। तुम्हारी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियों से मुख्तलिफ हैं। क्या तुम मेरी इन बातों को समझ सकते हो? मैं तुमसे ज्यादा समझता हूँ बेटे, बहूरिया ने कहा। तुमने अभी दुनिया नहीं देखी। तुम्हारी उम्र घोड़े की पीठ पर और हेमों में गुजर रही है। मैं जहाँ दीदा हूँ कामसीन लड़के, हमें इंसानों का दर्जा दोगे तो हम तुम्हें ऐसे ही इंसान बनकर दिखाएंगे जैसे तुम्हारी फौज के ये आदमी हैं। और ये भी ना समझना कि मैं ये बातें तुम्हारे या तुम्हारी फौज के खौफ से कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मजहब के असूल और हुक्म क्या हैं और मैं तुम्हारे मजहब को कबूल करूँ या ना करूँ ये बाद की बात है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि तुम्हारा मजहब राजा दाहिर के मजहब से जो मेरा भी मजहब है बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि तुमने जो जगहें फतह की हैं वहाँ किसी पर जुल्म नहीं किया। क्या तुम्हारे सब कबीले तुम्हारा हुक्म मानते हैं? मोहम्मद बिन कासम ने पूछा। कम ही नहीं मानते बल्कि मुझे भगवान का दर्जा देते हैं, बहूरिया ने कहा। मुझे बताओ तुम क्या मनवाना चाहते हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम इंसानों की तरह रहो, मोहम्मद बिन कासम ने कहा, और इंसानों जैसी इज्जत हमसे लो। हमारे मजहब को देखो, अगर मेरा कोई हाकम या सिपाही किसी के साथ ज्यादती करे तो इसकी शिकायत करो, उससे वही सजा मिलेगी जो राजा दाहिर तुम्हें देता रहा है। फिर सुन ले ए अरबी, बहूरिया ने कहा, आज से हम वैसे ही इंसान बन गए हैं जैसे तुम कह रहे हो और हमने तुम्हारी अतात कबूल की। हम पर जो महसूल आयद करोगे हम खुशी से वो अदा करेंगे और आज से तुम्हें इजाजत है कि जैसा कपड़ा पहनना चाहते हो पहनो, मोहम्मद बिन कासम ने कहा। कोई आदमी नंगे सार और नंगे पाँव न रहे। तुम सब घोड़ों पर जीने डालकर सवारी कर सकते हो। कुछ अरसे बाद जब मैं देखूंगा कि तुमने अपनी इज्जत और मेरा एतमाद बहाल कर लिया है
تو میں تمہیں فوج میں بھرتی ہونے کا حق بھی دے دوں گا۔ اس طرح وہی جاٹ قوم جو سرکش، وحشی اور باغی، رہزن اور ڈاکو مشہور تھی، ایک باعزت قوم کی طرح محمد بن قاسم کی اطاعت میں آ گئی۔ محمد بن قاسم نے بحوریہ کو اپنی برابری میں بٹھا کر کچھ تحفے دیے، اس کے سر پر پگڑی لپیٹی اور اس کے پاؤں میں جوتے ڈالے۔ ابن قاسم ایک سالار حریم بن عمرو نے عربی زبان میں کہا، ہم پر سجدہ شکر واجب ہو گیا ہے کہ یہ وحشی قوم ہماری مطیع اور فرما بردار ہو گئی ہے۔ چاشنامہ فارسی میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم ہنس پڑا اور بولا، اے ابن عمرو، اگر تو سجدہ شکر کو واجب سمجھتا ہے تو میں تجھ ہی کو اس علاقے کا حاکم مقرر کرتا ہوں۔ بحوریہ کو رخصت کرنے کے لیے جب سب خیمے سے نکلے تو جو جاٹ باہر کھڑے تھے وہ ڈول بجا کر اپنا ایک محسوس ناچ ناچنے لگے۔ جب وہ ناچ چکے تو حریم بن عمرو نے اپنی جیب سے انہیں 20 دینار بطور انعام دیے۔